all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے and we don't comment on these things. اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ ضروری ہے تو پھر ہو جانا چاہیے. آبادی 4 گنا بڑھ چکی مگر صوبے وہی 4 ہیں. کچھ تو سوچنا پڑے گا. نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ سے متعلق فیصلہ ہم نہیں عوام نے کرنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سسٹم کی تباہی سے متعلق محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا. تبصرے سے انکار. کہا ملکی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری. اچھی حکمرانی عوام کی خواہش ہے. اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا مگر یہ سب آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے. ہم برسوں سے بہتر گورننس کی رائے دے رہے ہیں. بہتری کیسے کرنی ہے اس کا فیصلہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کریں گے. پاکستان کے نوجوان بہتر مستقبل چاہتے ہیں. انہیں ریاست کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے. بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں. تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق بلا تفریق چلائیں گے تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. بات چیت ہے نا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی جو انہوں نے کی آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی. میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے ہمیں چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے. شہداء پاک فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان کے حوالے سے کی گئی بات ناقابل فہم. اس سے بھارت کو خوشی ہوئی. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب. کہا ہم نے وردی پہن کر اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے. قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. سیاستدانوں سے گزارش ہے عوام کو شعور دیں. اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں. اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں. یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از more than 31,000. جو مصدقہ دہشت گرد ہیں تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں they are 2,084. اب دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. امن کے دشمن ہتھیار ڈالیں یا مرنے کے لیے تیار رہیں. ہم انہیں ختم کر دیں گے. ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام. کہا تمام جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر متفق ہیں. 40,348 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 2,084 دہشت گرد ہلاک ہوئے. انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ اب نرمی نہیں ہوگی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. افغانستان اور بھارت میں صرف ڈی این اے کا فرق ہے. آر ایس ایس اور بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے مائی باپ ہیں. رواں برس 28 خودکش حملے ہوئے. زیادہ تر حملاور افغانی تھے. Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے. No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. سردار اور ایلیٹ کلاس بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ. کئی سردار دہشت گردی میں ملوث. 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ مانگنے والے کہتے ہیں شیئر نہ ملا تو بد امنی کروائیں گے. سرداروں کی خواہش ہے لڑکیاں ٹیبلٹ نہ پکڑیں خودکش جیکٹ پہنیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. کہا صوبے کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کی فہرست ایک جیسی ہے. مارکہ حق میں دشمن کی حکمت عملی ناکام ہونے پر بلوچستان میں نسلیں جمائی گئیں. ایلیٹ اور سرداروں کی کوئی اہمیت نہیں. ریاست براہ راست عوام سے بات کرے گی. پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی اور ایکسپوز ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ کشمیر پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ. یہ پاکستان کی شہرگ تھا ہے اور رہے گا. ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام.
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आजाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। भारत ने भी कुछ करना है तो कर ले। मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबों का मामला ज़ेरे बहस। पीपल्स पार्टी ने इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी। मजलिस आमला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पार्टी क़यादत नए इंतजामी यूनिट्स के आईनी, सियासी और इंतजामी पहलुओं का जायजा लेगी। पाक फौज हमारी रेड लाइन, हमारे सिपाही कौम का फख्र हैं, वो किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है, हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया था, इसी सिस्टम में आपने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। वजीर आजम के मुशीर का शुरका से खिताब। मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए, आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। अब के सूबे हैं, इनके नाम हम तब्दील नहीं करना चाहते। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। इत्तेहादी ने वो सब दरखास्त करांगे, ये सूबे जड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक मोहसिन नकवी की बातें वक्त की जरूरत। नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। तजवीज़ दी कि चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ में तकसीम किया जाए। कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ चुका है कि सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी निजाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ वजीर आजम नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मौजूदा हुक्मरान जमातें नए सूबे या इंतजामी यूनिट नहीं बनने देंगी। जो बचा है उसे महफूज करने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इतलात शौकत यूसुफजई की भी नए सूबों की हिमायत। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, छोटे सूबों की मुखालिफत क्यों हो रही है? जितने इंतजामी यूनिट्स होंगे कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होगी। 5-5 बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए। MQM भी नए सूबों के हामी। एक विफाक और 4 सूबे हैं, ये निज़ाम नहीं चल रहा। मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में खिताब। सिस्टम के हवाले से मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम से मजाक। पेट्रोल पूरे 12 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 66 पैसे कमी। 1 अगस्त के लिए कीमतों का तयन। पेट्रोल 336 रुपये 3 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 392 रुपये 38 पैसे लीटर मिलेगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला इतवार को मैदान लगेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। जो जीत जाए वो ठीक, जो हार जाए वो इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से आगाह है, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मीडिया टॉक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर।
सोरंज में कोयले की कान में धमाका, अमवात की तादाद 34 हो गई, 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया, 30 लाशें वर्सा के हवाले। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था, 3 भाई भी शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत का जाम भाग कारकुनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फ का कहर, लापता होने वाले 10 में से 8 कोह पैमाओं की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोह पैमा मिशन का हिस्सा थे। तौदा गिरने के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ, 2 कोह पैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। पाक फौज ने बीमार अतालवी कोह पैमा को रेस्क्यू कर लिया। कराची में नौजवान मीर रजा के कत्ल का मामला हल न हो सका, तहकीकात में मकतूल की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। तफ्तीशी हुकाम को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मीर रजा को जाय वकुआ के करीब उतारा, मकतूल का मोबाइल रिकवर कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 30 अगस्त को रजा का निकाह तय था, वो खुश था, कोई कारोबारी परेशानी भी शेयर नहीं की। वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। कराची में बीवी हैवी ट्रैफिक, एक और जिंदगी निकल गया। बल्दिया सैफ को यूसुफ गोच बस टर्मिनल के करीब ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक, रहमान की लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई, 2 जख्मी जेरे इलाज। मॉनसून का नया स्पेल, जुड़वा शहर डूब गए, 12 कहूं में पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए, गलियां और सड़कें तालाब, हर तरफ तबाही ही तबाही। राजा बाजार पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट में पानी, होटल और दुकानों में दाखिल, कमेटी चौक, ढोक काला खान और मिलत कॉलोनी भी जेरे आब। फ्रेंड्स कॉलोनी मिस्ट्रियाल रोड पर नाले में गिरने वाला बच्चा ना मिल सका। मूसलाधार बारिशों ने रावल डैम भर दिया, सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला। गाज़ाम मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त अहम तरीन संगे मील, वज़ीर आज़म तमाम वादों पर अमली पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद। शहबाज शरीफ का अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा, पायदार आम के लिए सियासी अमल तेज करने पर जोर। ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, जंग में अमेरिका को बढ़तरी हासिल है, ट्रंप का दावा, हमले जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के लिए बड़ा इक़दाम करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार, ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला, 5 सालाना इंकलाब का तैयारों के हैंगर्स, सैटेलाइट सिस्टम और गोदामों को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तेहरान ने मिस्री बंदरगाह पर ड्रोन हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मराकश से स्पेन में 60,000 अफराद की एंट्री, सरहद अबूर करते हुए 57 अफराद हलाक, तारकीन वतन के दाखिले की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। शिमाली शहर सियोटा में फौज तैनात, मुतादिद तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बाद शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। हिस्पानवी वजीर आजम कहते हैं सियोटा में पेश आने वाले वाकयात से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा, तारकीन वतन को वापस भिजवा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल हासिल कर लिया। 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में बॉक्सर फातिमा जहरा को शिकस्त, हरीफ बॉक्सर का जारिहाना अंदाज, रेफरी ने फाइट रोक दी, कैनेडियन बॉक्सर फातेह करार। शिकस्त के बाद फातिमा जहरा कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर बन गई। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कुछ देर बाद अरशद नदीम इन एक्शन होंगे।